सभी को राम राम, जय श्री महाकाल. दिस इज रेणु मंगतानी from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, where we teach you numerology and we also provide you the paid consultations related to health, growth, career, relationships, vehicle numerology, mobile numerology, and much more. And you can know more about Ankakshar Miracles. You can Google us. Our Facebook page name, our YouTube channel name is Ankakshar Miracles, and today we have Umman Hudda ji on the platform of Ankakshar Miracles as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of both the anthology books titled as My Marriage, Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. So hello Umman ji, how are you doing today? Yeah. Hello, Renuji. Thank you. Thank you very much for having me here on this platform. Yeah, it's really nice to have you here. It's like a dream come true कि एज ए ऑथर के बाद मेरा पहला ये पॉडकास्ट है आप लोगों के साथ में. या Thank थैंक you यू. so much. Thanks. So before we begin, we'll take the blessing from the God and then we'll have this beautiful conversation. या. कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. भवं भवानी सहितं नमामि. So let's know more about ma'am, and I'm starting the screen sharing. Just let me know, ma'am, that whether you're able to see the screen. यस आई कैन सी ना. Yes. So talking about ma'am, she is a Microsoft certified trainer, corporate trainer, data analyst, software quality analyst, motivational speaker, travel enthusiast. And this is the small quote that we have taken out from our article. It says, marriage provides a lifelong companion with whom you can share everything and face all ups and downs together. This is the beautiful book cover of Seven Lee of Life. This book has more than 2000 points on learning, earning, and expectation. And this is a beautiful picture holding the books. And now I'll share with you all the cover of My Marriage, Bliss versus Curse. Here it is. And also the cover of Mobile Addiction, such topic which is actually needed in the hour. And there are 21 simple techniques in it that how to remove or reduce mobile addiction in children or students and adults. All these books are available on Amazon and Flipkart, and this book is authored by me and my husband Abhishek Chitransh, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles and an expert master numerologist. And also he's my husband, so he has been supporting me a lot in all my achievements and everything. He has supported me a lot, and also he has changed my name. It was RENU, then numerologically it is set to RAINU, and post that I have achieved a lot in my life. So for such magical name transformation also you can reach out to us. And now let's talk about the current anthology, which the title of the book is A Family Puzzle, United or Divided, Roots to Wings for Passing Bonds Across Generations. So Manji is also a part of this book. She has already registered, and you also can register it and enjoy the multiple benefits of this anthology. Like you can be the certified, internationally certified published co-author. So what all you'll get in this, you'll get hard copy of the book, hard copy of publishing certificate, your elite portfolio, your identity card, then podcast or online interview, trophy and medal of co-authorship, media coverage, and hard copy of the book Mobile Addiction, signatured by authors, totally free. And we have our magazine available on Maxter as an Ankakshar Miracles. It is the first monthly magazine based on numerology. So you will get a chance to get featured in it, surprise goodies, and much more. So let's not take much time of Amanji and let's start a beautiful conversation. So, ma'am, my first question to you is, as you are a motivational speaker, so we'd love to have some of the motivational tips to live a better and happy life with peace. Over to you, ma'am.
Yeah, okay. Thank you very much, Renu ma'am. Thank you. So yeah, so motivation is it's something like I feel like it is naturally coming with me. Like even though from my college days or in my childhood, I was feeling like that I can motivate people, so I can give some guidance, and people are listening them very carefully, and they feel like that advice or the things are really good. So after that I start thinking about, okay, this can be possible that I can motivate people, or but before that the most important thing is like if you want to motivate others, you need to motivate yourself first. So first you need to be motivated. So for me actually the inner peace and happiness, so this is the things like it's not coming from outside, it is cultivated within you. So if you feel like that you are happy or you want to be happy, nobody can stop you. So main thing here, the key point that I will say is like feel that first of all you need to understand what is happiness, and you need to decide you want to be happy or not. If you want to be happy, nobody can stop you. So few key points if you will ask me, then I would say be gratitude. You should start your day with gratitude. That is like you need to be thankful. That a small thank you will change life. It is a magical word. So you need to be you can say thankful for the things that you are having in your life. You should not be like I'm not having this or I'm not having that. So जो आपके पास है आपको पहले उसमें सेटिस्फाई होने की ज्यादा जरूरत है. So you need to gratitude for everything that you are having in your life. Then forgiveness. So for that actually like you need to forgive people. So if something happens, so you don't need to take grudges inside you. So it is like let's say if you are taking a poison inside you and thinking like the other people will suffer, but it is not like that. If you are not like forgiving anyone, so you are harming yourself. So that is the most you can say a crucial thing. So you need to learn how to forgive people. So if something happened, leave it. Okay, so it is like you can say you can heal yourself with forgiveness. And then most important thing that I would say is like you need to let it go. Those things, those are not in your control. So don't keep things holding like I want this, it should happen in this way. अगर वो वैसे नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट लाइक कि आपको वो वैसे करने की जरूरत है. आपको चीजों को कंट्रोल नहीं करना है. यू नीड टू लेट इट गो. अगर कुछ हो गया है जो आपको नहीं अच्छा लगा या कुछ गलत हुआ, तो इट्स ओके, इट्स फाइन. You need to learn how you can let the things go away, and you don't need to, you can say, pain yourself and your family. After that one my most important point is like always throughout your life you should learn and growth throughout the lifetime. It's not like that abhi stage mein kya seekhna kya ye. So in every stage of your life you need to be keep learning new things, either a new skill set or mindset or reading books or you can say teaching or learning. So learning is a never ending thing. So you need to learn throughout your lifetime. And of course the important point is you need to surround yourself with positive people. So that is always we all agree with this point, right? We should have a circle where we can get the more positivity. We need to restrict ourselves with the negative person or from where we are getting the negativity, either it will be online or offline, family or friend. So we need to surround with more positive people in our life. Okay, so these are, I think, a few key points that I remember always, and I'm telling these to my friend and family and the person who are coming. So they should also follow these things. So first thing is you need to understand that what is happiness. Stay happy. और सबसे अच्छी बात इसमें कहूँ तो खुद वो आराम से रहो और औरों को भी जीने दो. जैसे एक वो पहले डायलॉग खुद है, को जियो मोटिवेट और करो, जीने सेल्फ दो. मोटिवेट योर सेल्फ, या. राइट. सो फर्स्ट ऑफ थिंग यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे को चेंज करने की जरूरत है. आप खुद में चेंज करके खुद ये अच्छा फील बताइए, आपने करिए. बात दूसरे को चेंज करने की जरूरत है, और सब लोग इसी में लगे हुए हैं. यस यस, सब और लोग उसी यही में कर रहे ही हैं, ज्यादा. इसलिए परेशान है. राइट. तो पहले आप अपने पे वर्क करिए. जो आपको लगता, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को जाने दो. तो जो आपके कंट्रोल में है, अगर ऑफ कोर्स आप दूसरों को भी बेटर बना सकते हो, आपको कोशिश करनी चाहिए. बट
अप टू एन एक्सटेंट। ऐसा राइट। नहीं है ना कि आप करे ही जा रहे हो, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बिल्कुल। आपको एक लाइन ड्रॉ हर उसमें करनी पड़ेगी। So these are, I think, few points that I think people can follow to motivate or to get inner peace and happiness. यस, दैट दे आर रियली परफेक्ट। एंड द मेन वन दैट यू सेड कि दूसरे को चेंज करने में लगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटी सी बात है, बट पीपल हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम्स लाइक एनीथिंग, लाइक डूइंग दिस, लाइक चेंजिंग अदर्स नेचर। Mhm. डिस्पाइट ऑफ दैट, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप Yeah. योर सेल्फ मोटिवेटेड। या राइट, आज के टाइम पे मतलब इतनी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि आज और ज्यादा स्किल सेट या फिर नई नई ग्रोथ, मतलब आप अपने आप को नई चीजों में इतना इन्वॉल्व करो कि नई नई चीजें सीखो, औरों को भी सिखाओ, तो वो चीजें आपको पॉजिटिविटी देती हैं, उनसे आपकी ग्रोथ भी होती है। ना कि अपना माइंड और वैसे ही किन चीजों में लगा के रखो जिनसे आपको नेगेटिविटी बढ़ रही है, और फिर माइंड भी अपसेट रह रहा है, उससे आप भी का भी प्रॉब्लम होती है, आपकी फैमिली भी इम्पेक्ट होती है। तो दे सकती हूँ। राइट। एंड लेट्स सी, आपने अपने आर्टिकल में लिखा है, यू से दैट द पाथ ऑफ मैरिज इज नॉट इजी, यू विल फेस हर्डल्स एंड challenges, but you need to work together to make it successful. So can you highlight those principles on which marriage can be successful, as these days youngsters are afraid of failed marriages, so this would be kind of advice for them. हाँ, या राइट, एक्चुअली मैरिज इज लाइक, दिस इज ए ब्यूटीफुल जर्नी, लाइक वी आर गेटिंग ए कंपेनियन, वी आर गेटिंग ए कंपनी फॉर ओवर लाइफ टाइम, लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर फ्यू डेज। सो दिस इज रियली ए वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। सो ऑलवेज लाइक, अदरवाइज वो कहते हैं ना कि अकेले रह जाओगे फिर वो करोगे, तो एक अच्छा कंपेनियन मिलना और एक मैरिज, सक्सेसफुल मैरिज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये कोई फेरी टेल नहीं है, या फिर इसका कोई ऐसे प्रॉपर रूल नहीं है कि ये रूल आप फॉलो करो तो आपकी मैरिज सक्सेसफुल है, ये नहीं करो वो नहीं करो। ये सबको डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कपल टू कपल की हाउ दे आर, दे हैव देयर सक्सेसफुल मैरिज, और व्हाट आर द पॉइंट्स दैट दे आर काउंटिंग ऑन दैट। राइट, सो इसमें जो मेरे पॉइंट है वो यही है कि इसमें आपको बनाने के मतलब एक एफर्ट करने पड़ते हैं ऑफ कोर्स। तो इसमें आपको पेशेंस भी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए है। तो उसके बाद आपके पास कुछ प्रिंसिपल लाइक, सबसे पहले जो मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट होनी जरूरी है दोनों पार्टनर्स में। तो जो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट नहीं है उसमें वो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी उतनी। अगर मैं मेरे पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करती और मेरी नहीं करते, तो वो हम एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं है, वो एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रिस्पेक्ट करके उसके बाद हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, वो बेसिक स्टेप है, यू कैन से दोज आर द इनिशियल स्टेप्स फॉर मैरिज लाइफ। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाने के लिए रिस्पेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद एक क्लियर कम्युनिकेशन दोनों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे कि वो रूठ गए या बात नहीं करी, या फिर उन्होंने सोचा कि मतलब वो अपने आप समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना कि इसमें अगर मैं समझू कि माय जो मेरा पार्टनर है ही कैन रीड माय माइंड, इट्स नॉट बी लाइक दैट। वी नी आई नीड टू टेल हिम ओके दिस इज द थिंग, आई एम नॉट लाइकिंग दिस और आई वांट दिस, सेम वे वो भी मुझे बताएंगे। तो हम मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन मैरिजेस में बहुत जरूरी है। एक दूसरे को अपने आप से डिसाइड नहीं करना चाहिए, अच्छा ये इसलिए ये कर रही है या ये कर रहा है वो। तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड अगेन द सेम फॉरगिवनेस ऑफ कोर्स, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। सो सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मिस्टेक्स होती ही हैं, तो उसमें हमें एक दूसरे को फॉरगिव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसी चीज को लेके बैठे रहें। हमें अपने गोल्स जो है वो शेयर करने चाहिए, जैसे कि एक फैमिली में है, हमें कि हमें कैसे ग्रोथ कर ग्रो करना है, क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें अपनी फैमिली को और आगे बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए या एक दूसरे के कैरियर के लिए। तो हमें एक मतलब शेयर्ड गोल होने चाहिए जो हमें डिस्कस करके साथ में एक डायरेक्शन देनी चाहिए। उसके बाद हमें और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वी नीड टू गिव स्पेस एंड फ्रीडम टू अवर पार्टनर। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम वे हम किसी को लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, सबकी अपनी सर्कल भी होता है या फिर सबके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। इवन मैरिज में हो सकता है कि पार्टनर्स के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हो, इट्स नॉट लाइक कि मेरे को ये अच्छा लगता है तो उनको भी ये अच्छा लगेगा, राइट। तो हमें वहां पे स्पेस देना, फ्रीडम और ट्रस्ट,
ये बहुत जरूरी है। तो इसके बिना जो है रिलेशनशिप हमारी मतलब सरवाइव नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद हमें एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहिए, लाइक वी नीड टू बी बिग चीयर लीडर फॉर ईच अदर। अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उन्हें वो मतलब करना चाहिए कि ग्रोथ के अप्रिशिएट करना चाहिए और फुल सपोर्ट भी करना चाहिए, राइट। जैसे अभी शुरू इनिशियली शुरू में ही आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया और बिल्कुल आपने बिल्कुल। ये चीजें तभी अचीव की, मेरा सपना राइट। था फुल टाइम, अब मैं फुल टाइम ऑथर हूँ बिकॉज उन्होंने ये मेरे सारे सपने पूरे हाँ, पूरे किए। तो राइट। दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो कि मेरे पार्टनर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो जो कर रहे हैं उसमें मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। सो ये वाइस वर्सा है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स कि हमारे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए, और फॉरगिवनेस तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है ही, और एक दूसरे की ग्रोथ में हमें खुश होना चाहिए। उसके बाद जो आपने पॉइंट बोला कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो एक्चुअली उनको डर है, दे आर फियर की ओवर मेरे child. So इसमें आई वुड से कि दे शुड नॉट हैव दैट फियर, बिकॉज इसमें नो नो मैरिज इज एक्चुअली परफेक्ट, राइट। सो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम, या कभी किसी चीज को लेके या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग मैरिज जो होती है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स होती है। एक स्ट्रॉन्ग मैरिज और सक्सेसफुल मैरिज होती है जिसमें दोनों पार्टनर्स विलिंगली साथ में काम करते हैं और एक हैप्पी लाइफ दे एंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो ज्यादा जरूरी है। तो उन्हें वो देखना चाहिए कि वो कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को साथ में खुश रख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मैरिज में एक बैचलर और मैरिज दोनों अगर आप देखोगे तो दोनों में रहेगा कि जब बैचलर होते हैं तो उसमें उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जब आपकी फैमिली और फैमिली होनी जरूरी है, दैट आई वुड से कि हाँ, तो आपको दोनों को मिल के सोचना होगा कि आप दोनों के लिए क्या अच्छा है, आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है, आपके पेरेंट्स के लिए क्या अच्छा है। तो उसमें आपको मैरिज फेल हो रही है या नहीं हो रही उसकी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक जो पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये चीजें जब होंगी तो अपने आप जो लव अपने आप ही जनरेट होता है। जब एक दूसरे के लिए आप इतना टाइम साथ रहते हैं, इनिशियली लेट्स से अगर नहीं भी है तो भी मतलब, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो और आप अपने आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करें। तो इसमें मैं तो यही कहूंगी कि हाँ, ऑफ कोर्स आपको डरना नहीं चाहिए फेल्ड मैरिज और उनसे। और इसमें एक और पॉइंट मैं अगर ऐड करूं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने मेरी उसमें बुक में भी लिखा है कि ऑफ कोर्स कुछ केसेस होते हैं, नॉट ऑलवेज ऑल द मैरिजेस आर सक्सेसफुल। तो जहाँ पे नहीं हो सकती हैं कुछ मतलब कि ऐसा कि जो आप खुश रह सकते हो, या फिर ड्यू टू एनी रीजन, मैं इसमें ये नहीं कहते कि वाइफ की गलती होती है या हस्बैंड की होती है, तो उसमें आपको मतलब अननेसेसरली एक उस रिश्ते में बंधे भी नहीं रहना चाहिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और द सोशल लाइफ की ये लोग क्या कहेंगे। तो बट ऑफ कोर्स उससे पहले आपको अपना 100% देना चाहिए एक मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए, जो जरूरी है। सो दिस बिल्कुल इज है। द ये पॉइंट्स दैट बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बहुत कह सकते हैं कि डीप थॉट्स हैं। अगर कोई सोचे तो अपनी मैरिज को डेफिनेटली इन प्रिंसिपल्स के साथ सक्सेसफुल बना सकता है। और रही बात फियर फैक्टर की, तो हमारी जो बुक्स हैं, अब माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, को ऑथर्स ने खुद कहा है कि ये मैरिज मैनुअल है बेसिकली। हम किसी को राइट। एनिवर्सरी गिफ्ट भी दे सकते हैं, और जो यंगस्टर्स जो डर रहे हैं वो भी रीड करके सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे तरीके की स्टोरीज हैं। मैरिड ने भी लिखा है, अनमैरिड ने भी लिखा है, फेल्ड मैरिजेस भी हैं। सो देर इज अ टोटल क्रिस्प इन इट, एंड आई एम happy to share with you all that these books are also placed in University of Mumbai, University of Pune and National Book Trust India. So आप सारे ही 108 लोग बहुत ही मेजर जगहों पे पहुंचे हैं जहां आपकी स्टोरीज अमर हो गई हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप आज आपने लिखा है, कल कोई कौन रीड करके आपकी स्टोरी रीड करके ट्रांसफॉर्म करेगा अपनी लाइफ। यू ऑल डू, सॉरी, यू ऑल डू नॉट नो दैट। सो ऑल हैव डन रियली, मतलब मैं तो जब भी आर्टिकल्स रीड करती हूँ ना, मुझे तो ऐसे, और जब जब पॉडकास्ट होते हैं तब भी सबसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बिकॉज ऑल हैव देयर डिफरेंट ओन एक्सपीरियंसेस। सो डेफिनेटली देर आर लॉट्स ऑफ लेसन्स विच आई एम लर्निंग फ्रॉम ईच वन, लाइक 108 में से जितने भी, जिनसे भी अभी मेरी 1 to 1 बात हो चुकी है।
So don't miss all these podcasts also, and don't miss to join the upcoming anthology. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक फैमिली भी मिलेगी, ऑथर फैमिली, सो ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट वेयर यू हैव केम। और उमन जी भी बता सकती हैं कि मैम व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपको ये बुक्स मिली, एंड होल जर्नी कैसी रही विद द अंकाक्षर मिराकल्स, एंड इफ यू हैव दोस बुक्स, Yeah, ऑडियंस को दिखा सकते हैं बुक्स। yeah, sure, sure. I have both. So this one is first one, that my marriage one, Bliss and sisters, yes. this is the second one, Seven Seven Way of Life. So how was Life. your journey, ma'am, with सो these? या तो एक्चुअली मैं अगर वो कहूँ तो इसमें सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी फ्रेंड्स ईशा और दिव्या। सो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया आपके कैसवर प्लेटफॉर्म से, जिसके बाद मैंने बुक एक सोचा कि हाँ मैं आई कैन 108 ऑथर्स फॉर दीज टू बुक्स। पर जो एक मेन यहाँ पे मेरी बात है वो ये कि जब ये हाथ में आई, जब वो हुआ, उससे पहले कहीं भी सोचा था मतलब कि हाँ कभी ऐसा होगा कि हाँ कभी लिखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीजें जो करते हैं ना कि जो मैनिफेस्ट करते हैं चीजें, तो उसमें आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हमेशा ये चीज भी मैं बल्कि कहती हूँ, जैसे वो ग्रेटिट्यूड का मैंने जैसे बताया आपको कि हमें हमेशा थैंक यू करते रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हम क्या चीज बोल रहे हैं, और वही चीज आगे जाके आप देखोगे कि अच्छा ये हो गया है। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉलेज में थी तब भी मतलब जैसे मैं डायरी लिखती थी, तो इट वाज कि राइटिंग मुझे हमेशा आई डोंट नो कि अच्छी लगती थी। तब तब भी मेरा ये रहता था कि मैं वो पॉइंट्स लिखती थी जो मुझे लगता था कि ये मुझे आगे जब मैं बड़ी होंगी तो मुझे ये नहीं करना है या ये मुझे करना है, काइंड ऑफ दोज पॉइंटर्स मैं लिखती थी। या फिर डेली क्या हुआ कैसे हुआ, जैसे मोस्टली गर्ल्स जो होती है कॉलेज में जैसे डायरी लिखती हैं। तो उसके बाद भी जैसे एक दो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि हाँ कि तुम कभी बुक भी लिखेगी या कुछ ऐसे। तो बट वो उस टाइम के बाद से मतलब हमेशा ये चीज मेरे दिमाग में थी कि हाँ कभी लिखना है। इवन कभी मैंने कुछ पोएम्स भी लिखी है, बट वो काफी कम ही मतलब जैसे कॉलेज डेज में ही हुआ था। फिर उसके बाद जब ईशा ने मुझे बताया कि ऐसे है, तो तब मैंने उनको भी यही बोला। इवन मैंने आप लोगों के साथ भी जब पहली मेरी मीटिंग हुई तो यही बोला था कि कई बार जब हम सोचते हैं और कुछ टाइम के बाद चीजें अपने आप वो हो जाती हैं, तो वो कहते हैं ना कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको वो देने के लिए अपने आप ट्राई करता है। तो यही चीज हुई। तो जब मुझे हुआ कि हाँ ऐसा प्लेटफॉर्म, जो बल्कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या ना मैंने ट्राई किया था, तो इसकी अपने आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद आज हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, और मेरे ओन renowned published author co-author in these books। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और ऑफ कोर्स ये कंटिन्यू करूंगी मैं, क्योंकि एक वो प्लेटफॉर्म जो मिला है, तो आई होप कि इसके बाद और भी बुक्स में लिखने का बिल्कुल मौका बिल्कुल मैम। मिलेगा। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। और जैसे उमन जी इतनी खुश हैं, वैसे ही बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी यहीं से स्टार्ट की है। दे वर ऑल्सो द डायरी राइटर्स, एंड नाउ दे आर द पब्लिश ऑथर्स इन द बुक्स। सो डेफिनेटली दिस इज रियली बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सब सुनते हैं कि सबके सपने पूरे हो रहे हैं, और इससे इंस्पिरेशन हमें मिलता है कि हमें और क्या एक्स्ट्रा करना है, व्हाट एक्साइटिंग सरप्राइजेस शुड वी ब्रिंग इन फॉर ऑल दी को ऑथर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। व्हाट्स दैट गाइडिंग प्रिंसिपल दैट उमन जी फॉलोज इन हर लाइफ? एज हैव माई ओन मोटिवेशनल लाइन दैट कीप्स मी रन एवरी डे, एंड इट इज कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू क्रिएट विद इन योर सेल्फ बाय बिलीविंग इन हु यू आर। सो आपकी क्या मोटिवेशनल लाइन है मैम? ओके, फॉर मी एवरी टाइम, नॉट फ्रॉम नाउ एक्चुअली, ये शुरू से ही मतलब मुझे मेरे बचपन से ही याद है, जब से ये एक पूरी लाइन मैंने हमेशा अपने माइंड में रखी है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए गुड रीजन इन लाइफ। तो कुछ भी अगर हो रहा है तो वो किसी न किसी एक अच्छे रीजन से हो रहा है। मे बी वही कि उस टाइम पे आप रियलाइज ना करो, कुछ टाइम के बाद आपको पता चले कि अच्छा ये हुआ था। सो दिस माइंड सेट एक्चुअली दिस हैज ग्राउंडेड एंड ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द लाइफ, और डिफिकल्टीज या फिर नॉर्मल कुछ भी ऐसे, तो कुछ भी होता है तो ये मेरी एक पंच लाइन रहती है कि एवरीथिंग हैपन फॉर सम गुड रीजन। तो इसमें है कि जो भी
लाइफ के जो लेसन्स हैं वो किसी रीजन से हो रहे हैं, ताकि मैं वो सीख सकूं या फिर आगे मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूं या किसी और को हेल्प कर सकूं। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ भी हो रहा है, हर चीज तो मुझे लगता है एक प्री प्लान है। तो कुछ भी हो रहा है वो किसी रीजन से ही हो रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यों हुआ है। सो यू नीड टू बी दैट मच कैपेबल कि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है अच्छा या बुरा, तो उसमें आपको वो फाइंड आउट करना है कि ये हुआ तो क्यों हो रहा है, या फिर इसका क्या मतलब है। तो उसमें आपको उससे आगे जाने की जरूरत है, ना कि उसी चीज पे रुक के आपको ज्यादा। यूं भी नहीं है कि कुछ बुरा हो रहा है तो सोचते रहो ये क्यों हुआ क्या हुआ, या यूं भी नहीं है कि अच्छा हो गया तो वहीं पे ही खत्म कर दो। Ma'am, there is some network issue, I guess. Can you listen to me, ma'am? Hello. एम आई ऑडिबल? Yes, now you're audible. एकदम से स्टक हो ओके गया था. ओके ओके। ठीक है। अभी ठीक है। Yes, yes, अभी ठीक है. या सो मैंने बस वही एक्सप्लेन किया कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर सम गुड रीजन इन लाइफ, सो दैट इज ऑलवेज माय पंच लाइन। दैट्स एक्चुअली अगेन अ ग्रेट पॉइंट बिकॉज लोगों का यही मानना होता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका उल्टा होता है. सो एवरीथिंग या हैपेंस फॉर सम रीजन, ही आपको बिलीव करना होगा बिकॉज जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. बाद में हम लोग खुद ही बोलते हैं इसी चीज को रियलाइज करके, बट उस टाइम पे ये सोचते हैं कि अरे ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. सो अगेन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट. Definitely या all थैंक the audience and readers will learn a lot from this. चलिए आइए जानते हैं मैम के वर्क प्रोफाइल के बारे में. जब मैंने भी रीड किया था, शी हैज बीन अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट एट मल्टीनेशनल कंपनीज, Microsoft certified trainer. So ma'am, can you brief about this exceptional profile, because this is something high profile that I have came across, and our audience would like to know more about it. Along with I would like to say to the audience that despite of any work profile that you have, you can still be an author, as Umanji has did it. You also have a writer inside you. You just need to realize it. या ओके, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर एप्रिसिएशन। या एक्चुअली आई स्टार्टेड माय करियर लाइक प्रोफेशनली इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन आईटी इंडस्ट्री। बट उससे पहले भी एक्चुअली आई वाज हाउस वाइफ। सो 8-9 ईयर्स जो मेरा टाइम रहा है वो मैं मतलब आफ्टर मैरिज विद माय डॉटर आई वाज एट होम, एंड दैट वाज हाउस वाइफ जॉब दैट आई वाज डूइंग। उसके बाद मैंने अपना आईटी करियर शुरू किया। वहां पे मुझे यहाँ पे फिर से मैं वही चीज कहना चाहूंगी कि अब अगर आपने कुछ सोचा है कि ये आपको करना है, तो वो आप कहीं ना कहीं से अपने आप वो मोटिवेशन भी लेके आओगे, और अपने आप आपके वेज भी आपको ओपन मिलेंगे। तो और मुझे हमेशा से था कि मुझे एक बार तो करनी है, चाहे मतलब कितने टाइम के लिए ही हो या कैसे भी करके। तो आफ्टर 8-9 ईयर गैप के बाद मैंने शुरू किया, और ऑफ कोर्स काफी अच्छे से किया। काफी कुछ सीखने को मिला वहां पे मुझे, उस फील्ड में पता चला कैसे आईटी में वर्क कल्चर होता है, कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड रन करता है। उसके बाद मैंने चेंज किया कॉर्पोरेट ट्रेनर। सो दैट इज आल्सो ए थिंग्स लाइक, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे एक दूसरे को आपको ट्रेनिंग करके वो भी इंजॉय करना। सो दैट इज आल्सो आई फाउंड कि वो भी मेरा पैशन है, तो वो मैंने स्टार्ट किया। उसमें उसके साथ में कंसल्टेंसी वर्क किया। तो मैं आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर फॉर पावर बीआई, पावर प्लेटफॉर्म, और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। ये माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट है, तो उनके लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन देती हूँ। उसके साथ में मोटिवेशनल स्पीकर, दैट इज माय पर्सनल इंटरेस्ट। एज आई टोल्ड यू, मुझे हमेशा से मतलब लगता है कि दिस इज ए गॉड गिफ्टेड थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। सो उसके बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकर वाला ये अपना साइड में रखा हुआ है। सो एंजॉयिंग एवरीथिंग। सो उसके साथ में जैसे मैंने बोला कि आपको थ्रू आउट लाइफ में लर्निंग और ग्रोथ हमेशा रखनी चाहिए। तो ये दोनों ही प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें मुझे आज भी लर्न न्यू न्यू थिंग्स लर्न करने का मौका मिलता है। और उसके साथ आपको यू विल फील कि आप पर्सनली कितना ग्रोथ कर रहे हो। तो इसमें ये मैं ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला, तो कोई भी जैसे अभी इवन ऑथर के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक प्रॉपर
पर ऐसा प्रोफाइल आपका होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं इतने सारे चेंजेस होने के साथ में अब एक और ऐड हो गया है, नाउ आई एम पब्लिश्ड ऑथर। सो एंड आई वुड एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके और भी नई नई चीजें मेरे प्रोफाइल में ऐड होती रहेंगी। सो बिकॉज आई फील लाइक कि आपको एक लाइफ मिली है, उसमें जितना आप लर्न कर सकते हैं आपको करते रहना चाहिए। और अपने आप को, अपने आप को ग्रोथ को ग्रोथ होते देखते रहना चाहिए। कितना अच्छा लगता है, क्या क्या चीजें हैं इसके साथ में मुझे ट्रैवल करना, वो भी अच्छा लगता है। तो वो उसमें भी कई बार सोचा है कि तो वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो लगता है कि हाँ हमें करनी चाहिए, करके देखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स तो डिफरेंट जैसे कि डिफरेंट आप चीजें करके। ट्रैवलर हैं, यू लव टू ट्रैवल, तो आप कौन सी प्लेसेस ड्रीम प्लेसेस हैं और कौन सी अब तक आप विजिट कर चुकी हैं? हाँ इसमें एक्चुअली अभी तो बल्कि नेक्स्ट वीक ही एक ट्रैक के लिए जा रहे हैं हम लोग। सो मी माय हस्बैंड विद द डॉटर। सो ट्रैकिंग करना काफी अच्छा लगता है मुझे कि उसमें वो प्रॉपर आपका प्रॉपर एक फिटनेस भी टेस्ट हो जाती है कि हाँ यू आर प्रॉपर फिट और नॉट। और उसके अलावा मुझे मतलब मुझे माउंटेन्स और सी दोनों ही अच्छे लगते हैं टू बी ट्रू। सो अभी मुझे जो सबसे कैन से जाना है वो मुझे यूरोप का टूर करना है। वो मोस्ट प्रोबेबली आई विश की नेक्स्ट ईयर शायद हो। तो बट उसके अलावा जैसे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी मैं कई प्लेसेस पे जा चुकी हूँ। तो वो घूमने, नई जगहों पे जाके उनकी कल्चर को देखना, घूमना, वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सो मुझे लगता है कि बाहर निकल के आप एक दूसरे को देख के और चीजें लर्न करते हो। सो ये चीजें अगर आपको कुछ नई चीजें देखनी है, या कई बार होता है ना कि आप औरों को देख के भी आपको खुश हो जाते हो जैसे, तो यहाँ पे आप जब ट्रेवल करते हैं तो उसमें आप देखते हो कुछ अच्छा बुरा सब चीजें देख के आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। सो एक तो मैम ट्रेवल जो। ट्रैवल में भी काफी सारी चीजें सीखती हैं, सो शी यू आर अ क्वाइट लर्नर, और या मुझे ऐसा ही मतलब सीरियसली मुझे ऐसे ही यही रहना लगता है चाहिए। कि हर हर चीज में ना हमें कहीं ना कहीं से, क्योंकि एक वो लेना चाहिए कि यहाँ से आप क्या लर्न कर रहे हो, क्या लेसन आपने लाइफ के लिए लिया है, और उस चीज को एक अच्छे उसके लिए रखो। जैसे वो गाना मैंने कि यू नीड टू लेट थिंग्स गो, उसको मतलब आपको एज ए एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कुछ भी हुआ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हमेशा जो, अगर आप घूम रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ से आप क्या नया सीख सकते हो, कैसे उसे अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो नेक्स्ट 5 इयर्स में हम अमन जी को कहाँ देखेंगे? या रिन मैम आपका वीडियो ऑफ हो गया है। नो नो, आई एम हियर ओनली। ओके ओके। या हाँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर में जो मुझे लग रहा है, एक तो ऑफ कोर्स मैं मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आई विल बी कंटिन्यू विद सम मोर कंसल्टेंसी वर्क विद ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। और बिसाइड दैट आई वांट टू गिव ए प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन मोटिवेट पीपल्स, आई कैन शेयर थिंग्स, और आई कैन से ग्रो देम, and I can share my experience, and you can say in any way if I can help anyone, so I will feel better. So I want to be a you can say renowned motivational speaker and impact thousands of life, and will want to feel good, okay, because of me. If someone can say have some peace or happiness in their life, that will be better, and I will feel, यू कैन से कि वो मेरे लिए भगवान की तरफ से एक वो होगा कि हाँ मुझे किसी की लाइफ को कुछ में कुछ अच्छा करने का मौका मिला। सो दैट विल बी, यू कैन से, माय पॉइंट। सो दैट्स रियली या ग्रेट एंड वी विश यू लॉट ऑफ सक्सेस फॉर द फ्यूचर। एंड आपका इतना स्माइलिंग फेस है, तो वैसे ही थैंक यू। कैसे भी ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगी लाइफ डेफिनेटली। और आपने उसकी शुरुआत कर ही दी है विद दिस टू, जो आपने 2 पेजेस का आर्टिकल लिखा है, एंड यू हैव रीच्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पुणे एंड व्हाट नॉट, और आपने फैमिली भी एंथोलॉजी ज्वाइन की है। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, और आप ऑलरेडी बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं, सो दैट्स रियली ग्रेट। सो आइए मैम से जानते हैं कि जो टॉपिक हमने जो टाइटल लिया है, फैमिली पजल रूट्स टू विंग्स फॉर पासिंग बॉन्ड्स अक्रॉस जनरेशंस, तो मैम कैसा लगा आपको टाइटल, और क्या वो सोसाइटी को किस तरीके से सोसाइटी जो इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकती है, और इज इट रियली अ नीड ऑफ द आवर टॉपिक?
यार रियली रेणु जी, लाइक जो फैमिली पजल जो हमने एक जो नया ऑफ कोर्स एक टॉपिक है अपनी नई आने वाली बुक के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का इट्स हाई ऑन डिमांड, लाइक आज के टाइम पे बच्चों को और मतलब सबको वो समझने की जरूरत है कि हमें वो फैमिली, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, बट एक फैमिली फैमिली होती है। मुझे लगता है कि ऐसे वो न्यूक्लियर और ज्वाइंट कह के वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको आपकी रूट के साथ ग्राउंडेड भी रखता है और आपको विंग्स भी देता है दैट यू कैन फ्लाई। राइट, सो एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें अपने जैसे पूरी फैमिली मेंबर्स को मिलके ये सोचना चाहिए कि हम कैसे एक हैप्पी स्पेस अपने घर में करें, जिससे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सब उसमें अच्छे से खुश होकर रहें, ना कि कोई प्रॉब्लम में हो, ना कि कोई परेशान हो। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने चूज किया है। और इसमें काफी लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी हमने जो माई मैरिज में लेके सबने 108 को ऑथर ने अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने पॉइंट या किसी ने किसी और की स्टोरी लिखी है, तो उसमें से भी हमें जैसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। सेम वे में इस बुक से भी हमें कि हम अपनी फैमिली को यूनाइटेड कैसे रख सकते हैं, या फिर क्या बेटर रहेगा, क्या अच्छा है। अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली से है तो वो ज्वाइंट फैमिली के पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स देखेगा, अगर कोई ज्वाइंट से है तो वो न्यूक्लियर के देखेगा। दे कैन डिसाइड लाइक उनके लिए कौन सी चीज बेटर है, क्या करना अच्छा है। तो ये आजकल की यंग जनरेशन, इससे हमें जो है, जो जनरेशन गैप एक्चुअली हमें वो कवर करने की जरूरत है। जो तो आजकल के बच्चों को भी ये पता चलेगा, मे बी ये काफी कम हो रहा है वैसे जो आजकल के बच्चे बुक रीड करते हैं, बट आई विश कि वो ग्रेजुअली इस तरफ जाए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूर हटके, और उन्हें रियलिटी में पता चले कि क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट रखती हैं उनकी लाइफ में एक फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए। तो यहाँ से भी काफी एक्सपीरियंस आई होप सभी रीडर्स को मिलेगा। Yes, that's really great, ma'am. And last question to you, how would you recommend to the new authors who wants to share their words, thoughts in the society through the platform of Ankakshar Miracles? तो इसमें मैं ये कहूंगी कि Ma'am, again your video has been stuck. No, now it's okay. या ओके, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। या मे बी, हाँ हाँ, थोड़ा वो नेटवर्क इशू आई गेस है। या सो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जैसे मुझे भी हमेशा था कि मुझे लिखना है, बट मैं सोचती थी नहीं मैं ये नहीं कर सकती, या नहीं होगा, या फिर कैसे करूंगी। तो हमें इस चीज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ कोई भी ऐसे हैं जिसने किसी भी चीज को थोड़ा सा डीपली फील किया है, या थोड़ा डिफरेंटली आप सोचते हैं, और आपके पास कोई स्टोरी, और सबके पास होते हैं एक्चुअली ये, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि परफेक्ट टाइम आएगा मैं तब ये लिखना शुरू करूंगी, मेरे को तब ये करना है। नो, आपको अपने वर्ड्स, यू नीड टू गिव वॉइस टू योर वर्ड्स ओनली वंस यू थिंक लाइक ओके आई नीड टू स्टार्ट राइटिंग। सो अपने थॉट्स को तभी के तभी अपने पेपर पे, तो यू कैन डायरेक्टली टाइप ऑन द वर्ड्स, वर्ड डॉक्यूमेंट। सो हमेशा जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, स्टोरी, जो भी आप अपना कैन से कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर किसी जो भी आपने क्या सीखा है, तो आई एम नॉट नॉट सेइंग कि आपको किसी उसमें लिखना चाहिए, बट हमेशा किसी न किसी एक्सपीरियंस को आपको एक बुक में देने के लिए कोई परफेक्ट टाइम की वेट नहीं करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स एज वेल यहाँ प्लेटफॉर्म आप मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि सब अगर आप देखेंगे तो ऐसे ऑथर भी हैं जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया लाइक मी, और ऐसे भी हैं जो सीजन्ड ऑथर हैं जिन्होंने काफी बुक्स लिखी हुई हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे काफी कुछ लर्न करने को भी मिलता है, वो आपको पूरा स्पेस देते हैं, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है वो आप एक पेपर पे लिख के आप उन्हें दे सकते हैं। तो वो सारा जो प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है और हेल्पफुल होता है। तो इसमें बस आपको केवल ये सोचना है कि किस बारे में लिखना है और कब लिखना है, ये नहीं डिसाइड करना, तभी की तभी लिखना शुरू करना है। और कोई प्रोफाइल नहीं कि मेरा ये प्रोफाइल है तो मैं बन सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस जो आपने फील किया, इफ कुछ भी डीपली आप चाहते हैं अपने वर्ड्स को
सराउंडिंग में, अपने वर्ल्ड में, और आउटसाइड द वर्ल्ड, इज नॉट ओनली यू कैन से इंडिया, थ्रू आउट ग्लोबली आप जो भी अपनी एक्सपीरियंस हैं वो, तो कोई भी बुक लिखना चाहते हैं तो बस आप एक अपना मूड सेट करें और स्टार्ट करें। और प्लेटफॉर्म ये आपके पास है ही, आप रेणु जी को रीच आउट कर सकते हैं, अभिषेक सर को आप रीच आउट कर सकते हैं, सो दे विल गिव यू प्रॉपर प्लेटफॉर्म विद स्मूथ प्रोसेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज। सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग ही रही ना, सेल्फ मोटिवेट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो देयर वर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम यू। और जल्दी ही मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। कीप वॉचिंग। दिस वॉज रेणु मंगतानी विथ उमन हुड्डा। थैंक यू या मैम। थैंक यू रेणु मैम, थैंक यू एवरीवन, या बाय। बाय।